Hello dear students, you are all most welcome to today's chemistry class. Today we are going to start a new topic in organic chemistry, and that topic belongs to your unit 13. So today we will be continuing with the first part, and that topic is your organic compounds containing nitrogen. That is, today we will be studying the organic compounds, those organic compounds which contain nitrogen as the functional groups. आइए उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे कंटेन नाइट्रोजन आज फंक्शनल ग्रुप? आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing nitrogen, you see the nitrogen containing organic compounds are of following types. देखो, first type is your nitro compounds. Nitro compounds मतलब the organic compounds contain nitro group as functional group. You see the nitro group contains nitrogen. Second one is your amines. They can be aliphatic or aromatic. Even they can be primary, secondary or tertiary, right? So they contain functional group like NH2 in case of a primary, or NH or N. In all these three cases you see nitrogen is present as functional group, okay? Next one is your cyanides. cyanides जिसको हम कहते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के नाम से वो जाना जाता है, तो इसको कहते हैं नाइट्राइल्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल इट नाइट्राइल, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल इट cyanides. That is C triple bond N. You see here it also contains nitrogen. Another is your isocyanides. Isocyanides or carbyl amines. Carbyl amines means NC, just reverse of this functional group. Again it contains nitrogen, right? Another is your amides. Amides means CONH2 here. In this class of organic compound, you will also see nitrogen is present. In addition to these compounds, another is azo. Diazo means N double bond N. देखो, benzene, diazonium, diazo group, or you can have a phenyl group, or OH. This is a class of organic compound called diazo class of organic compounds. Again they contain nitrogen. ऐसे बहुत ही सारी organic compounds हैं जिसके अंदर में nitrogen is present in their functional groups, right? But we will be limiting our discussions only to amines. So आज का शाम amine के नाम। आज पर योर सिलेबस नाइट्रो कंपाउंड्स हटा दिया गया, सियानाइड्स इसके अंदर में आ जाती है, आइसोसियानाइड भी थोड़ा बहुत आ जाएगी, अमाइड्स भी आ जाएगी, और इसको छोड़ देते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं आमीन्स के बारे में, ठीक है? सो व्हाट आर आमीन्स? ये सारी के सारी कंपाउंड्स है, दे बिलोंग्स टू अमोनिया फैमिली। ये सारी अमोनिया की भाई बिरादरी है, चाचा चाची पोता पोती, ये सारी उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं। सो दे आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. They are called as derivatives of ammonia, means they are all produced from ammonia by replacing the hydrogen atoms. देखो देखो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, this is nitrogen. You replace one hydrogen, bring another group, maybe alkyl group or aryl group. You can replace another hydrogen, bring another alkyl group or aryl group. ऐसे तरह एक एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम एक एक अल्किल ग्रुप और आरिल ग्रुप डालते जाएंगे तो हमारा बनेगा
सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ऑफ अमोनिया, और वी कॉल देम एज amines. So amines are the अमोनिया डेरिवेटिव्स. कैसे बनते हैं? देखो, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक अल्किल ग्रुप और आरिल ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया? आरिल और आर ग्रुप. दिस इज NH2. वी कॉल इट प्राइमरी amine. Okay. Or if I remove second hydrogen and bring another alkyl group, I get another amine. I call it secondary amine. If I remove another hydrogen and bring third alkyl group, I will get, देखो देखो देखो, ये बन गया तुम्हारा tertiary amines. You can have alkyl group or aryl group. You can have alkyl group or aryl group. So these are the members of amines. Today we will be discussing amines, their classification, structure, nomenclature, isomerism and preparation. बहुत ही दिलचस्प बात आज मैं बोलने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ. बैठ जाइए, निकालिए कॉपी, निकालिए पेन, लिखते जाइए. ये रहा amines. मीन्स alkyl or hydroxyl derivatives of ammonia, prepared by replacing the hydrogen atoms one by one with the alkyl or aryl groups, right? Then classification. The amines are classified basically as into two groups. They may be alkylamines, they may be alkylamines or aryl amines. Alkylamines. Alkylamines means they contain alkyl group. They contain alkyl group. Nitrogen के साथ alkyl group is bonded. There may be one alkyl group, there may be one alkyl group, or maybe two alkyl group, or maybe three alkyl groups. So they are called as alkyl amines. Aryl amines, the aryl group means aromatic rings. Aromatic means benzene rings like AR, NH2 or AR2NH or ARN3, AR3N और ARCH2 NH2. मतलब कुछ ना कुछ aromatic ring रहना जरूरी है. They are called as aromatic amines. Again, aliphatic or aromatic amines are classified into three categories. They are classified into three categories like primary amine, secondary amine and a tertiary amine. ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही गजब का चीज है. ये प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अमीन, बहुत अंतर है उसमें, बहुत अंतर है. देखो कैसा है, कैसा डिफरेंस है उसके अंदर में, देखते जाइए. देखो प्राइमरी अमीन किसको कहेंगे? इट इज नॉट द अमीन. कभी मत कहना ये कि जिस कंपाउंड में अमीनो ग्रुप इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन. ऐसा नहीं है. इन अल्कोहल यू कैन से OH group is bonded to primary carbon, OH group is bonded to secondary carbon, OH group is bonded to tertiary carbon. लेकिन मर जाना कभी गलती से भी ऐसा मत कहना. देखो प्राइमरी अमीन क्या है? प्राइमरी अमीन, व्हाट आर प्राइमरी अमीन्स? हाउ विल यू नो दिस इज प्राइमरी अमीन? ध्यान से सुनना. N के साथ 2H रहना जरूरी. ये ग्रुप है प्राइमरी अमीन की पहचान है. ये ग्रुप कोई भी कार्बन के साथ जुड़ा हो, कोई भी कार्बन के साथ जुड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं. वो कार्बन प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो. देखो देखो देखो, ये रहा तुम्हारा CH3NH2, ठीक है, ये भी प्राइमरी है. अब बताओ इसका क्या नाम दोगे? इसका क्या नाम दोगे? क्या ये सेकेंडरी? क्या है सेकेंडरी? अगर यहां पे OH होता तो हम
आँखें बंद करके कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन ये सेकेंडरी अमीन नहीं है, सेकेंडरी अमीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सारे के सारे प्राइमरी अमीन है, क्योंकि आपने देखा कि NH2 के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं, हाउ मेनी कार्बन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और अटैच विथ नाइट्रोजन कितने कार्बन है, नाइट्रोजन से ओनली 1 कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, बट अमीन इज प्राइमरी, राइट, सो इट इज अगेन प्राइमरी। देखो CH3 ये रहा NH2, क्या कहोगे उसको भाई, क्या टर्शियरी अमीन है, क्या टर्शियरी अमीन नहीं, ये सारे के सारी प्राइमरी अमीन से पहचानो, अमीन्स आरो दीवानो पहचानो उसको, कौन है ये, कौन है ये सारे के सारे प्राइमरी से, कभी नहीं कहना कि ये टर्शियरी और सेकेंडरी अमीन से। सो ये रहा प्राइमरी पहचान है NH2 ये रहा पहचान, ये रहा पहचान, ठीक है। सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, देखो देखो देखो, यही तो अंतर है, यही तो समझने की बात है। सेकेंडरी अमीन मतलब एन के साथ कम से कम 2 कार्बन ग्रुप रहना बहुत ही जरूरी है। 2 कार्बन ग्रुप से, देखो यहाँ पे कुछ भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, मिथाइल लो, इथाइल लो, कुछ भी तुम्हारा मर्जी ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एन के साथ 2 ही कार्बन ग्रुप बॉन्ड करना जरूरी है, और तीसरा एक H, मीन्स ये रहा पहचान सेकेंडरी का, ये रहा सेकेंडरी। और ये सेकेंडरी अमीन तुम्हारा, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल मतलब if 2 groups on both sides are same, R, NH, R, so if 2 alkyl groups, 2 carbon groups are same, it is called as simple. If they are different, R, NH, R dash, अगर वो अलग है तो मिक्स्ड है। ऐसे तरह टर्शियरी अमीन कैसे हम पहचानेंगे, हाउ विल यू नो दिस इज टर्शियरी, ठीक उसी तरह एन के साथ देखो कितने कार्बन्स लगे हुए हैं, कितने कार्बन्स, 3 कार्बन लगना चाहिए। देखो ये कार्बन 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको देखना है नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन ग्रुप्स लगे हैं, कितने कार्बन। तो एक डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया, एक से जनरल एग्जांपल होगा, जनरल फार्मूला यही तो होगा ना, सो उसका पहचान है एन, ये रहा उसका पहचान, ठीक है, ये रहा टर्शियरी। अगेन ये भी 2, इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल and also mixed. Simple means if all the alkyl groups or the substituents are same, it is simple. If they are different, if 2 are same, third one is different, or all the 3 are different, then they are called as mixed tertiary amines. आई बात समझ में? मुझे लगता है कि ये सारी बात आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का चीज है। टर्शियरी अमीन हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, ये सारे के सारे भाई बिरादरी अमोनिया का, और स्ट्रक्चर कैसा होगा आइए समझते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीन्स आर सिमिलर विथ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या है, अमोनिया की स्ट्रक्चर H, पिरामिडल कहते हैं, पिरामिडल, लेकिन ये हमेशा पिरामिडल नहीं है, बहुत ही गहरा बात है, बहुत ही गहरा राज है। ये फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल है, फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल जब बड़े होंगे तब पढ़ोगे। फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल मीन्स ये लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, देखो ऐसे उसको कहते हैं फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल। कुछ भी हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, प्योर sp3 तो नहीं है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं है, sp3 और बॉन्ड एंगल लीजिए, अमोनिया के बाद मैं कर रहा हूँ 107.5 डिग्री। उसी तरह सारे के सारे अमीन्स की, एलिफेटिक अमीन्स में
बात कह रहा हूं एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स की सारी अमीन्स। अगर मैं यहाँ एक R लिख दूं बन गया प्राइमरी, अगर मैं यहाँ दूसरा R लिख दूं बन गया सेकेंडरी, और यहाँ पे मैं तीसरा अल्किल ग्रुप लिख दूं तो बन जाएगा तुम्हारा टर्शियरी। R ले लो और R ले लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.20 109°28 मिनट्स, ये रहा। लेकिन गजब का चीज है आरिल अमीन्स के लिए और एरोमेटिक अमीन्स के लिए तो भयंकर चीज है, भयंकर चीज। आइए सीखते हैं एरोमेटिक अमीन का क्या है स्ट्रक्चर। बहुत ही कम किताब में ये दिया हुआ है, बहुत ही कम किताब में। आज आइए हम सीखते हैं कि एरोमेटिक अमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, चलिए एरोमेटिक अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम देखते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिंपल एरोमेटिक अमीन इज योर एनिलीन, एनिलीन। देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन? कभी मत कहना ये sp3, कभी मत कहना ये sp3। क्या ये sp3 है? नो, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स N। देखो H ये रहा तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, एरोमेटिक रिंग। सो हियर नाइट्रोजन the lone pair is present in p orbital, that is why it participates in resonance। अगर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा ना, रेजोनेंस का कोई नामो निशान ही नहीं आएगा, कभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इफ इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो इट इज ट्रिगोनल प्लानर, ट्रिगोनल प्लानर मीन्स sp2 hybridization and bond angle is 120 degree। प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर स्ट्रक्चर, ये रहा राज। जहां पे रेजोनेंस हो रहा है ना, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां पे हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा और प्लानर स्ट्रक्चर होगा। ये रहा डिफरेंस। ये एलिफेटिक sp3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हियर लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। ये बड़ी गजब की चीज है, याद रखना। उसके बाद चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसा हो रहा है, आइसोमेरिज्म, उसके बाद प्रिपरेशन। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखो नोमेनक्लेचर, while doing the nomenclature of all types of amines, देखो नोमेनक्लेचर, what are the general molecular formula, general molecular formula GMF, general molecular formula of all amines, primary amine is RNH2, in case of secondary R2NH, dialkylamine, or in case of tertiary we can write down this. This is the general formula, both aliphatic or aromatic. What are the functional groups? NH2 for primary, NH this is for secondary, and this is for a tertiary. प्राइमरी अमीन की ये रहा फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी का ये रहा, और टर्शियरी का ये रहा फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर द सफिक्स? सफिक्स व्हाट इज सफिक्स? अमीन। एंड व्हाट इज IPAC नेम? IPAC नेम it will be alkanamine, alkanamine in case of a primary. For secondary it will be N-alkyl alkanamine, N-alkyl alkanamine. One alkyl group will be like a substituent. In case of tertiary it may be N-dialkyl alkanamine. That depends upon alkanamine. That depends upon how many different types of groups are present. Okay, चलिए सीखते हैं कि ये रहा पहला अमीन CH3NH2. What will its name? What is its common name? And IPAC name सीखते हैं आज. चलिए, मिथाइल अमीन, common name is मिथाइल अमीन.
आईपीएसी नेम कभी उल्टा मत कहना कि अमीनो मिथेन, ऐसा मत कहना। मिथाइल मीन्स मीथेन, अल्केन 1 कार्बन मीन्स मीथेन, ई को हटा दो, जोड़ दो अमीन, मिथानामीन, इथाइलामीन। So this is your ethylamine. There are 2 carbon groups, so it will be ethanamine, ethanamine. Eth means 2 carbon, N means a single bond is present between them, and amine, ethanamine. And if I write like this, CH3, CH, CH3, and this is your NH2. This is not a secondary amine, this is primary amine. What will its name? Isopropyl amine. Common name. This is the isopropyl group, you know, this is isopropyl amine, but IPS name will be 1, 2, 3. प्रिंसिपल चेन को हमेशा नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर में अमीन ग्रुप आती है। तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 amine, 2 amine. So propan 2 amine. If I write like this, CH3, NH, CH3, what will its name? Dimethyl amine is a common name. Dimethyl amine, IPC name will be, there are 2 similar groups, किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट बना लो, कोई बात नहीं। N मिथाइल, ये बच गया, ना होगा, नाम होगा मिथानामीन, मिथानामीन। ठीक है, ये रहा सिंपल सेकेंडरी एम। इफ आई टेक मिक्स्ड, सो इट विल बी इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल मिथाइल अमीन, एक मिथाइल ले लेते हैं, इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन, समझ में आ रहा है ना? और क्या होगा, ये बड़ा भैया, ये छोटा भैया मार्केट गए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो जो बैग है उसको उठा कर कौन लाएगा? बड़ा भाई नहीं, वो छोटा, वही उठा के लाएगा। मतलब ओ एन को उठा के लेके आएगा घर, एन मिथाइल इथानामीन, क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन है, वो हेड ऑफ द फैमिली हो जाएगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा। और कुछ एरोमेटिक नेमिंग करते हैं। ये रहा कॉमन नेम इज एनिलीन, इट इज एनिलीन। व्हाट विल इट्स आईपीएसी नेम? इट इज बेंजानामाइन। इफ आई राइट लाइक दिस, इट इज नोन एज ऑर्थोटोल्यूडिन, ऑर्थोटोल्यूडिन, common name is ऑर्थोटोल्यूडिन। What will its IPC name? 2-methyl benzene amine. In this way, the amines are given IPC name. एक टर्शियरी अमीन का नाम लिख देते हैं, CH3(3)N, क्या होगा? ट्राईमिथाइलामीन, and it will be N dimethyl methanamine. So these are the nomenclature of both some of aliphatic and aromatic amines, right? चलिए आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म shown by the amines. You see, they show first chain isomerism. You know what is chain isomerism? Same molecular formula. They differ from each other. Nature of a carbon chain, whether carbon chain is straight or branched. Remember, for amines to show chain isomerism, they need 4 carbon atoms at least. You can see here N-butylamine, isobutylamine, N-butyl means 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में NH2, और कार्बन चारों को मैंने ब्रांचिंग कर दिया, C, सेकेंड कार्बन को C और लास्ट कार्बन को NH2, ये रहा कार्बन चेन का ब्रांच। सो कार्बन चेन अलग हो गया तो इसलिए दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। सिमिलरली पोजीशन आइसोमर मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसको
उठा के कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं। देखो वही एन प्रोपाइलामीन सी लास्ट को NH2, उसी NH2 अगर मैं बीच को ले आऊँ, बीच के वाला कार्बन के पास ले आऊँ, CH3 CH NH2 CH3, देखो 3 कार्बन स्टेट, लास्ट में NH2 था, अब NH2 बीच में आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो द पोजिशन आइसोमर्स जिसको कहते हैं अमीन का, वही आखिर उसका चेन आइसोमर्स। ऑल द पोजिशन आइसोमर्स ऑफ amines are nothing but they are position isomers. Functional isomerism, remember primary, secondary, tertiary amines are functional isomers of each other. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रहा प्राइमरी, ये रहा प्राइमरी एन प्रोपाइलामीन, ये रहा प्राइमरी, ध्यान से मेरा बात सुनना। और सेकेंडरी देखो CH3NH, ये रहा C2H5, वही फॉर्मूला C3H9N, और आखिर में N, ये रहा CH3 सो N प्रोपाइलामीन, इथाइल मिथाइलामीन एंड ट्राइमिथाइलामीन आर ऑल फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जहां स्ट्रक्चर परमिट करते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स बनाते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेटामरिज्म। लेकिन मेटामरिज्म से पहले एक सवाल मैं पूछता हूं, आप जवाब देना। एक ये सवाल 2018 में शायद पूछा गया था CHEC एग्जामिनेशन में। राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द amines, structural isomers of the amines produced from this formula C3H9N. C3H9N से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ amines बन सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर लिखो और नाम भी करो और क्लासिफिकेशन भी करो। 3 मार्क का क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुका है। बताओ क्या होगा, क्या होगा? देखो CH3 CH2 NH2 ये रहा, और CH3 CH3 और NH2, we can write NH2 here, this is CH3, and CH3 NH C2H5 और CH3 N CH3 CH3. So these 4 structural isomers are possible. Out of these 4, these 2 are primary, this is secondary, and this is tertiary. Out of 4 structures, 4 isomers, the first 2 are primary, secondary, and tertiary. This question has already been asked and may be repeated. Next is metamerism. What is metamerism? Metamerism is shown by the organic compounds, amines, in which how you say that it is metamerism? Because they contain dissimilar or different alkyl groups, around the polyvalent functional groups. देखिए NH मैंने एक सेकेंडरी अमीन लिया, C2H5, ये रहा C2H5, मतलब डाई इथाइल अमीन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होते हैं, तो वही फंक्शनल ग्रुप को रखो यहाँ पे, सेम फंक्शनल ग्रुप रखो। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन ग्रुप, यहाँ पे 2 कार्बन ग्रुप, तो उसको बंटवारा कर लो, डिवीजन कर लो। एक ही साइड में मैं ले लूँगा 1 कार्बन और दूसरे साइड में मैं ले रहा हूँ 3 कार्बन। वो 3 कार्बन हो सकते हैं लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा मेटामर्स। सो डाइइथाइलअमीन और मिथाइल एन प्रोपाइलअमीन और मिथाइल आइसोप्रोपाइलअमीन, they are metamers. Means same molecular formula represent different structures which differ from each other in the nature of alkyl group around the polyvalent functional group. So these are the 4 types of isomerism normally executed by amines. Okay.
नाउ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट है. There are 6 to 7 methods of preparation. Just see one by one. I am going to discuss. Okay. Number 1 is by reduction of a nitroalkane. Reduction of a nitroalkane. Reduction of a nitroalkane. RNO2. NO2. Remember what are the reducing agents? Reducing agent is your zinc HCl or tin HCl और आयरन HCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो. 6H, देखो आउट ऑफ 6H 4H combines with these 2O and they give you RNH2. I am just writing how to write the product. 6H out of 6 hydrogen, 2 are combined with nitrogen and the remaining 4 with 2 oxygen, they produce 2H2O. If you take nitrobenzene, similarly if you take nitrobenzene and do the same reduction with the same reducing agent, you take any one of them, you will get aniline, plus 2H2O. So this is the first method of preparation, that is called reduction of a nitrobenzene by using acidic reducing agent. Never use neutral reducing agent or alkaline reducing agent, only acidic reducing agent. This is very important. Number 2, by reduction of alkyl cyanides. This is called Mendius reaction. I am explaining all the reactions one by one. देखते जाइए. RCN नाइट्राइल्स, अगेन 4H. कहाँ से आया ये 4H? वही रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम अल्कोहल भी हो सकते हैं, सोडियम अल्कोहल. और सपोज आपको रिड्यूसिंग एजेंट आपका याद नहीं आया एग्जामिनेशन में, यू कुड नॉट रिमेंबर द रिड्यूसिंग एजेंट, बस आंखें बंद करके लिख दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. काम बन जाएगा, आराम से काम बन जाएगा, अच्छी तरह से काम बन जाएगा. देखो ये 4H से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H, और दूसरा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड हो जल्दी टूट जाता है, तो यहाँ और एक H, यहाँ और एक H, मीन्स यू गेट RCH2NH2. सो यू गेट प्राइमरी अमीन, वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कोई बात नहीं, यू विल गेट अमीन. ये रहा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और cyanides. Another is very very important, most important for your examination point of view is Hofmann's bromamide reduction. Hofmann's bromamide reduction. Number 3, Hofmann's bromamide reduction. Very very important, भयंकर इंपॉर्टेंट. देखो, और व्हेन अमाइड, एसिड अमाइड, बोथ आरिल और अल्किल, दोनों के लिए इज ट्रीटेड विथ अल्काली सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन. अल्काली सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन अल्कोहलिक मीडियम यू टेक इथाइल अल्कोहल. ध्यान से देखना, ये जो CO बीच में है ना, ये हट जाएगा. इसका काम है CO को हटाना. हट गया ये, और ये दोनों कंबाइन हो गए. बस वही ठीक से प्रोडक्ट लिखना, उसके बाद हम देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बात की बात है. पहले तो सीखते हैं क्या रिएक्टेंट दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो रिएजेंट का काम क्या है. ये रिएजेंट का काम है CO को हटा देना, मीन्स कार्बन के नंबर में कम हो रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट के पास 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट के पास 1 कार्बन कम होगा, 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा. और यहाँ 2 कार्बन की प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो 1 ही कार्बन का प्रोडक्ट होगा. तो मीन्स इट इज ए डिग्रेडेशन रिएक्शन. देखो, और 2KBr plus K2CO3. So this
is removed as a carbonate. It is called bromamide reaction because in the one of the step, I am not writing the mechanism, I am not going to write the mechanism, because in one of the step bromamide is produced. This is called bromamide. So this is called bromamide. See, this is intermediate. The reaction proceeds through these steps. So that is what is called as a bromamide reaction. एक सवाल मैं देता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए. CH3 CO NH2. If I write bromine KOH, what is the product? Sometimes you will not be asked about Hofmann's bromamide reaction. Write notes on Hofmann's bromamide reaction. You will be given a reaction in this way and you will be asked to write the product. So अगर आपने देखा ब्रोमीन और अल्काली, मतलब समझ जाना कि ये जो इशारा दिया है ना, समझदार आदमी को इशारा काफ़ी, ये जो इशारा में उन्होंने कह दिया, मतलब ये उन्होंने कह दिया तुमको कि ये भाई हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो क्या करना, सीधा उसको हटा देना बस. देखो इसमें क्या हुआ, दो बातें हुई. तो पहले कार्बन का नंबर रिड्यूस हुआ, सेकेंडली वी गेट प्राइमरी अमीन्स. प्राइमरी अमीन्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स हमको मिलेगा. ठीक है. और तीसरा ये रहा थर्ड मेथड. फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. आइए सीखते हैं गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस क्या होता है. गाब्रियल थालिमाइड synthesis. So this is a very very important method, beautiful method for preparation of primary amines only. You cannot get any other amines. You cannot get any other amines. Thalimide means the amide of thalic acid. So this is your thalic acid. It's amide. This is called thalimide. And this H is active acidic. Oh my God, it is acidic. So means it will react with base. उन्होंने खींच लिया, एसिडिक हाइड्रोजन खींच लिया, उन्होंने बना डाला पोटासियम थालिमाइड. पोटासियम थालिमाइड इज ए सॉल्ट. It is a salt. When this potassium थालिमाइड इज treated with the suitable alkyl halide, आप कैसा अमीन बनाना चाहते हैं उसी तरह से आपको लेना पड़ेगा अल्किल हालाइड. देखो देखो अल्किल हालाइड, दिस इज SN2 रिएक्शन, नाम सुना होगा आपने. तो यहाँ पे दिस इज द इंटरमीडिएट, यू गेट CO, हियर CO, ओके, NR. नाउ डू द हाइड्रोलिसिस. उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो. अल्कली हाइड्रोलिसिस मीन्स दिस बॉन्ड विल क्लीव. ONA इसी साइड में, H इसी साइड में, ONA इसी साइड में, H इसी साइड में. सो बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमीन. देखो देखो देखो, ये स्टेप्स सारे के सारी एग्जामिनेशन में लिखना, सारे के सारे स्टेप्स एग्जामिनेशन में जरूर लिखना. ठीक है. बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमीन. बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ प्राइमरी अमीन. दिस इज कॉल्ड गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस. राइट. अनदर जी स्कीम रिएक्शन. एक ही साल पूछा गया था 2018 में. सब पागल हो गए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया आउट ऑफ सिलेबस. बहुत ही सारी शोर शराबा हुआ था उड़ीसा में. ठीक है. गवर्नमेंट को मजबूरन, मुझे जहाँ तक याद है तो कुछ ग्रेस मार्क देने के लिए मजबूर हुए थे. तो देखिए पढ़ लेते हैं, क्या बुरा है. तो व्हेन दिस इज कॉल्ड स्कीम रिएक्शन. स्कीम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या जाता है. व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ हाइड्राजोइक एसिड. हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस. हाइड्राजोइक एसिड. सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मैं मैकेनिज्म के पार्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट टचिंग अपॉन द मैकेनिज्म. सिर्फ और सिर्फ ये लिखना, उसको उठा के फेंक दो कार्बन डाइऑक्साइड. और ये यहाँ पे जो है ना NH,
ये रहा NH2, ये NH2 ग्रुप को लाके यहाँ से जोड़ दो, बस तोड़ फोड़ जोड़, बस वही हो गया. सो RNH2, ठीक है, प्लस CO2 वगैरह. नेक्स्ट इज योर फ्रॉम बाय ammonolysis of Hofmann for alkyl halide, very very important. देखो, when alkyl halide is treated with ammonia, in alcoholic medium, you see you will get primary amine. So many times it is in this process you will get mixture of amines. Primary amines, when primary amine is minus HX, समझ में आ रहा है ना, H bond NH2, ये amine HX चला गया, primary amine. When again it is treated with alkyl halide, if you take alkyl halide excess, then you will get secondary amine. And when secondary amine is again treated with alkyl halide third molecule, you will get a tertiary amine. रिएक्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है, तो चलेगा, आगे चलेगा, चलता जाएगा. कहाँ? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक. ये रहा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम halide. So many times this has been asked. Very beautiful reaction. अंत में from by reduction of और दो रिएक्शन है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड RCONH2. अगर उसको हम रिडक्शन करेंगे, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जिंक HCl कुछ भी दे दो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H, it will reduce this group as CH2. So you will get RCH2 NH2 containing same number of carbon atoms, and at last when alcohol is treated with ammonia, in presence of heated alumina, you will get primary amine, again with alcohol, you will get secondary amine, and again with the third molecule of alcohol, you will get tertiary amine, and you will get a mixture of three types of amines. I think all the methods of preparations are over, and you will have absolutely no problem in understanding all these things. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Very interesting questions. You just look into the questions and do the answers. देखो RCONH2. What will be the product? ब्रोमीन KOH मैंने दे दिया, और यहाँ मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया. नंबर 1. नंबर 2, if I take RC triple bond N, if I do reduction with sodium alcohol, what will the product? I did the reaction, first did the hydrolysis, what is the reactant, what is the product A, then I react with the ammonia, again I get B, and then heat it with C, then with the lithium aluminum hydride I get D. Solve it, very interesting. You see, this is Hofmann's bromamide reaction. Hofmann's bromamide means CO will be reduced and you will get RNH2. याद आ रहा है ना, मजा आ रहा है. और ये रहा कंप्लीट रिडक्शन से क्या होगा, ये हटेगा नहीं. So this will be converted to CH2. So you will get RCH2 NH2, means you will get a primary amine. In either case you will get a primary amine, but here it contains one carbon atom less, it contains same number of carbon atoms, right? What about this one? Third reaction और एक देता हूँ, alcohol SOCl2 A, KCN B, sodium alcohol C. Answer all these questions. Let us do this question. In acid medium H plus, it is your acid, so cyanide will be converted to acid. So A is your RCOOH. Cyanide group is converted to acid. When reacts with ammonia, acid base reaction, you will get ammonium carboxylate.
अमोनियम कार्बोक्सिलेट, याद है ना? When you heat it, it will lose a water molecule and will give you amide. And when that amide is again reduced with lithium aluminum hydride, अभी मैंने बताया है, ये देखो, you will get RCH2, यहीं से लिख देते हैं, बस वही आ गया, lithium aluminum hydride. Very interesting. What about this reaction SOCl to thionyl chloride? So automatically it will give you RCOCl, RCl, because this reagent converts OH group to Cl. On reaction with the potassium cyanide SN2 reaction, you will get RCN, alkyl cyanide. बस ये रहा. और then sodium alcohol means RCH2 NH2. So these are the sequence of reactions. Okay. So this is a very simple topic, and questions are bound to come in the examinations, in all types of examinations. Question तो जबरदस्त आने वाले हैं, आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आएगा. Let us see the previous year's questions. In 2016, this question was asked. In Hofmann's bromamide reaction, amide is converted to dash. In Hofmann's bromamide reaction, amide is converted to dash. Number one, primary amine, secondary amine, tertiary amine, aldehyde. In Hofmann's bromamide reaction, only primary amine you get. Second, the reaction between the primary amine, chloroform and alcoholic OH, वो बाद में हम पढ़ेंगे उसको. कार्बिलामिन रिएक्शन कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन मिथाइल साइनाइड इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल. ये देखो ये व्हेन मिथाइल साइनाइड CH3CN is reduced with sodium alcohol. What will the product? Sodium plus alcohol. On reaction, they produce nascent hydrogen. Reactive hydrogen. That reactive hydrogen reduces your cyanide. They break the pi bond and hydrogens are getting added on both sides. So you will get CH3, CH2, and this is your NH2, ethylamine. Right? This was asked in a 2019 examination, CHEC examination. Explain Hofmann's bromamide reaction with example. This question was asked in 2018. So many times in different way it is asked. Hofmann's bromamide reaction. What will you write? When amide is treated with the alkali solution of bromine in alcoholic medium, it produces primary amine containing less number of or one carbon atom less than parent amide. ये लिखना with the example. This was asked in 2018 CHEC examination. Okay. What is scheme reaction? आज मैंने बता रहा था कि 2018 में जब एक क्वेश्चन आया था, सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था. ठीक है, वो तो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन वो अभी इनसाइड द सिलेबस हो गया. ठीक है. तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with hydrozoic acid in presence of a concentrated sulfuric acid, we get primary amine. Write the structural formula of all the isomeric amines with the molecular formula C3H9N. आज ये प्रॉब्लम मैंने किया, C3H9N से कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अमीन्स बनते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करो और अभी नेम भी लिखो. मैंने बताया था 4 structures are possible. 4 structures: N-propylamine, isopropylamine, they are both primary amines, and a secondary amine, ethyl-methylamine, and a trimethylamine, this is tertiary amine. So there are 4 structural isomers of amines are possible
with the formula C3H9N. एंड अनदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एपिसोड का और इस चैप्टर का नहीं है. गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ इक्वेशन. एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन. भाई हम तो कितने मेथड्स पढ़ चुके हैं. आज हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड. ठीक है. देन we discussed how will you prepare it from alcohol, from alkyl halide, ammonolysis, Mendes reaction. So many things we have already discussed. You can write one reaction. What happens when nitromethane reacts with the tin and HCl? हाँ वही बात है. Nitromethane is treated with the tin and HCl. Nitromethane CH3NO2. Nitromethane is treated with the tin and HCl. टीन एंड HCl, इट इज एसिडिक रिड्यूसिंग एजेंट. टीन HCl हो, जिंक HCl हो, आयरन HCl हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ भी हो. सो दैट मीन्स इट इज जनरेट 6 nascent hydrogen and you will write as methylamine plus 2H2O. So these are the types of questions normally asked in CHS examinations. डरने की कोई ज़रूरत नहीं. बहुत आसान सा सवाल पूछा जाता है. एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के क्लास के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं तो आराम से आप बिंदास कर सकते हैं. चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज क्या क्या चर्चा हुआ और व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास. Amines, they are all derivatives of ammonia produced by replacing one or more alkyl or aryl groups in place of a hydrogen. Then we classified them as aliphatic or aromatic. Aliphatic and aromatic are classified as primary, secondary and tertiary. Then we did nomenclature. The IPAC name for primary amine was alkanamine, secondary amine N-alkyl alkanamine. In case of tertiary it is N-dialkyl alkanamine. Then we did the nomenclature of some organic compounds, some amine compounds. Then we studied isomerism, chain position, functional metamerism and 7 methods of preparation. ठीक है. And I am sure you must have enjoyed today's class and whatever questions are likely to come, you will find no difficulty in answering them. Thank you all. Thank you. God bless you.